let's go ahead. So first of all, I discussed about the change in internal energy yesterday. And we discussed that there are two ways in which you can change the internal energy. The first way was by heating it, that is by heat transfer. If you increase the temperature of a system from T is equals to 100 degrees Celsius to T is equals to 200 degrees Celsius by giving heat to the system, correct? So you can change the internal energy of the system because you know that your internal energy is related to the temperature. And the second way that we discussed was by doing work, correct? If we compress the system, if this is the gas, and if we compress the piston, this piston is massless, frictionless, always. So when we compress it, we do a work here, correct? And by this work, this gas molecules will gain energy. And when these gas molecules will gain energy, after compression of this piston, the temperature of the system will increase. If let's say if the initial temperature was 100 degrees Celsius, then it goes to 200 degrees Celsius. I'm maintaining them. Okay, I'm doing work, I'm doing compression in such a way that I'm going from 100 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. Again, work is done here and there is a change in the internal energy of the system. So these are the two ways that we have studied yesterday. Okay, and this experiment gives you the relation between work done, heat, work done, heat, and of course change in internal energy, which is coming to the, or which leads to the first law of thermodynamics. And your confusion started here, correct? So let me explain those confusion first कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों आप जो बोल रहे थे कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मैम अलग अलग पढ़ रहे हैं. सी मैंने तब भी कहा था कि इट इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन. ये सारी चीजें साइन कन्वेंशन पे होती है, ठीक है? बट मैम लेने का कौन सा? तो लेट्स डिस्कस. और मैं बताती हूँ कि आप चाहो तो आप केमिस्ट्री भी याद रख सकते हो, बट अगर आपने केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन दिमाग में रखा तो आपको क्या चेंजेस लाना पड़ेगा वो आपको मैं बताऊंगी. और साथ में अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आपको क्या दिमाग में सेटअप रखना पड़ेगा. बट आपने एक जो भी आपने दिमाग में सेट किया आपको वही आगे हर जगह कंटिन्यू करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने केमिस्ट्री यूज किया कभी आपने फिजिक्स यूज किया. दोनों का अप्रोच, चाहे आप केमिस्ट्री से सम सॉल्व करो या फिजिक्स से सम सॉल्व करो, ओवरऑल यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग एंड यू विल गेट द सेम आंसर. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आपने केमिस्ट्री यूज कर लिया फिर नीचे आपने फिजिक्स यूज किया. नहीं, जो आप एक पर्टिकुलर टेक्निक लेके आगे बढ़ोगे वही टेक्निक आपको ओवरऑल यूज करनी है जो भी आपको इजी लगती है. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यही समझाते समझाते मैं आपको समझाऊंगी कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में डिफरेंस क्या हुआ जिसकी वजह से ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम में आपको कंफ्यूजन हुआ. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस we have did an experiment. हमने एक experiment किया था that we took a cylinder in which there was an ideal gas and there was a massless frictionless pulley, correct? Sorry, piston, massless frictionless piston, sorry. And there was an ideal gas inside. Okay, now what happens कि मैंने कहा था कि if your piston expands, आपका piston that is consider expand हो रहा है, and here your work done is by the system. Your system is doing a work. आपका जो piston है वो expand हो रहा है. Here I am considering my system as my favorite part. मैं system को ही लेके हमेशा discussion करूंगी. ये बात मैंने हमेशा point out की है. So your work is done by your system, correct? आपका system expand हो रहा है. This work is done by system. And of course मैंने कहा था कि इस तरीके से याद रख सकते हो कि since volume is increasing here and volume is increasing, so your work done is given by the formula PdV. Please ध्यान से सुनो. Since the volume is increasing, your work done is given by
PdV means your work is directly proportional to the change in the volume. Okay, so work done is directly proportional to change in volume and volume बढ़ रहा है, so of course मेरा work done that I'll consider to be positive. अब आपका ये confusion आया था कि मैम हमने केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ा, इन केमिस्ट्री हमने उल्टा पढ़ा कि वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हम लेते हैं तो वी नीड टू टेक नेगेटिव, हमको नेगेटिव लेना पड़ता है, ये आपका कंफ्यूजन था. आर यू क्लियर? आपका कंफ्यूजन एग्जैक्टली क्या था कि मैम हम जो भी इसमें पढ़ रहे हैं कि व्हेन द पिस्टन एक्सपांड्स, अगर पिस्टन एक्सपांड होता है तो इन फिजिक्स वी आर स्टडीइंग दैट द वर्क डन यू आर सेइंग इज पॉजिटिव एंड इन केमिस्ट्री वी स्टडी दैट द वर्क डन इज नेगेटिव. अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो समझो. हमने जब फिजिक्स का कंसीडर किया, पीडीवी क्या होता है? पीडीवी आपको पता नहीं है? P इज द प्रेशर एंड डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम. ये ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में किया है आयुष. P इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम. ओके, वी आर गोइंग टू प्रूव इट फर्दर. मैं इसको प्रूफ भी सिखाऊंगी. आई एम गोइंग टू प्रूव इट, डोंट वरी. अब जरा ध्यान से समझो जो कंफ्यूजन था कि in physics you say that work done by the system is positive and in chemistry you say work done by the system is negative. अब ध्यान से समझो कि ऐसा क्यों होता है. Try to understand those things. अब यहाँ पर जो मैंने work done लिया है, here you can see जब आपने chemistry में work done लिया होगा, आपने starting में ही chemistry में work done ऐसा कुछ लिया होगा, यहाँ पे आगे negative sign लिया होगा और सर ने कहा होगा कि negative sign इसलिए आ रहा है सॉरी, ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन होगा सर का, करेक्ट? तो ये ओरिजिन शिफ्ट हुआ है. जब हम फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं तो हम गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लेकर एक्सप्लेन करते हैं, मतलब हम इंटरनली एक्सप्लेन करते हैं. इसकी वजह से हम डायरेक्टली जो वर्क डन लेते हैं वो माइनस पीडीवी नहीं लेते हैं, हम प्लस पीडीवी लेते हैं. इसका मतलब ये है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हियर प्लीज, या ओरिजिन शिफ्ट हुआ है बालाजी. यहाँ पर जहां पर आप एक्सटर्नली सोच रहे थे, फिजिक्स में क्या किया जाता है, इंटरनली सोचा जाता है और बोलते हैं कि जो फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स ये गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, ये बाहर की तरफ लगा रहे हैं. और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? इन सब का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? बाहर की तरफ हो रहा है. मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन कंसीडर किया गया है वो सेम डायरेक्शन में कंसीडर किया गया है. इसीलिए यहाँ पर वर्क डन जो है पॉजिटिव सेंस में कंसीडर किया गया है. और इन केमिस्ट्री आप वही चीज क्या करते हो, एक्सटर्नल के बाहर के हिसाब से सोचते हो, तो वहां पर आप वर्क डन क्या लेते हो, वहां पर आप वर्क डन क्या लेते हो, माइनस पीडीवी लेते हो. ओके, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आपको माइनस का सेंस दिमाग में रखना है, और अगर आप फिजिक्स के सेंस में जा रहे हो तो आपको W इज इक्वल्स टू पीडीवी लेके सॉल्व करना है. ओके, हाँ, रिलेटिव कंसेप्ट है. तो आपको जो इजी पढ़ रहा है, आपको केमिस्ट्री वाला इजी पढ़ रहा है तो आप केमिस्ट्री वाला याद रख सकते हो, आपको फिजिक्स वाला इजी पढ़ रहा है तो आप फिजिक्स वाला याद रख सकते हो. ऑन एन अप्रोच आप दोनों के तरफ सेम तरीके से आंसर निकालोगे. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट्स एंड देन आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके, पहले मुझे मेरा एक्सप्लेनेशन दे देने दो, उसके बाद मैं जो भी डाउट्स है वो मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगी. ओके, सो लेट मी क्लियर माय कंसेप्ट फर्स्ट. अब सी, फॉर मी एज आई एम एन फिजिक्स पर्सन, मेरे लिए ये चीज याद रखना बहुत इजी है कि ऑफकोर्स सिंपल सा बात है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वर्क डन इज गिवन बाय पीडीवी, दिस आई एम गोइंग टू प्रूव, वेयर पी इज द प्रेशर एंड डीवी इज द वॉल्यूम. मेरा सिंपल सा फंडा है याद रखने का कि जब कोई भी चीज एक्सपांड होती है, जैसे कि मैंने बोला सिस्टम मेरा बच्चा है, सिस्टम कोई भी काम करेगा, मुझे वो चीज अच्छी लगेगी. इफ माय सिस्टम, इफ माय चाइल्ड इज डूइंग अ वर्क, दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी फॉर मी, सॉरी पॉजिटिव सेंस फॉर मी. ठीक है, if my system is doing a work, that is a positive sense for me. So if my system is doing a work, of course there is an expansion. expansion है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और मुझे पता है कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट एंड वॉल्यूम. तो ऑफ कोर्स अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरा वर्क डन अपने आप क्या कंसीडर होने लगेगा, पॉजिटिव कंसीडर होने लगेगा.
सो दिस वाज सिंपल वे फॉर मी टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को ओरिजिन लेके बातें की है। ओके, सो आइदर अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो तो आपको ये सेंस लेकर चलना है वर्क डन का, आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हो तो आपको वर्क डन प्लस पीडीवी लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स सेंस, आप दोनों में से कोई भी सेंस यूज कर सकते हो, नो इश्यू, जस्ट यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड, क्योंकि आप ये जो स्टार्टिंग का ओरिजिन कंसीडर करोगे ये आपके पूरे लॉ में चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आपने फिजिक्स का कंसेप्ट यूज किया फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री यूज किया। इफ आई एम stick to the physics, I'll go with the physics concept. If I'm stick to the chemistry, I'll go with the chemistry concept. दोनों भी चीजें आपको एक ही जगह पे अप्रोच करवाएंगी। Okay. So I'm going ahead with the physics concept. That if there is a displacement, of course, volume is increasing. अगर expansion हो रहा है तो volume increase होगा, volume increase होगा, मुझे पता है मेरा work done volume पे depend करता है, volume increase होगा तो मतलब मेरा work done positive होगा। Okay. Now बाहर सिंस ये प्रेशर फोर्स लगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है अंदर के ये फोर्स लगा रहे हैं एक्सपांड होने के लिए, अगर ये अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं इस पिस्टन को एक्सपांड करने के लिए, ऑफ कोर्स वहां पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब भी मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा मतलब कहीं ना कहीं मेरे गैस मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, वहां पर मेरी जो चेंज इन एनर्जी होगी, सिंस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ओके सॉरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी इस सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए यूज कर रहे हैं। और मुझे पता है चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट, योर चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरी एनर्जी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, तो कम माइनस ज्यादा विल गिव यू अ नेगेटिव साइन। तो ये बात क्लियर रखना, इफ यू आर स्टिक्ड टू फिजिक्स, आपको चीजें क्लियर हो रही है कि फिजिक्स में क्या कर रहा है वो, सो प्लीज कीप इट इन माइंड कि व्हेन दिस मॉलिक्यूल, व्हेन दिस सब्सटेंस इज एक्सपांडिंग, जब ये चीजें एक्सपांड हो रही है, ऑफ कोर्स एक्सपांड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ओके, बट keep it in sense कि we are not taking W is equals to minus PdV here, we are taking W is equals to simply PdV here, क्योंकि हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सो ऑफ कोर्स जब ये मॉलिक्यूल एक्सपांड होंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं इसको एक्सपांड करने के लिए, एनर्जी डिक्रीज होगी, तो जब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपका डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड इट इज वाइस वर्सा, जब वर्क डन नेगेटिव होगा, आई विल डिस्कस दिस केस एज वेल, तो आपका जो डेल्टा यू होगा वो पॉजिटिव होगा। लेट्स डिस्कस दिस केस एज वेल। आपको यहाँ तक समझा है, दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों इसमें नेगेटिव माइनस पीडीवी लेके सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पे क्यू प्लस पीडीवी लेके सॉल्व कर रहे हैं, और यू हैव टू स्टिक दैट वन सेंस, तो ही आपका पूरा लॉ परफेक्ट आगे बढ़ेगा। प्लीज आस्क योर डाउट्स नाउ, देन आई विल गो अहेड विद द सेकंड कांसेप्ट। बोलो बालाजी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। मिस वो साइन कन्वेंशन बोर्ड्स में चेंज होएगा तो चलेगा? हाँ चलेगा, बट आपको ये चीज दिमाग में रखनी है हमेशा कि व्हेन यू आर सेइंग वर्क डन इज इक्वल्स टू पीडीवी, तो आपको पूरा सेंस यही लेके चलना है। क्योंकि देखो जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसके लिए पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, एंट्रेंस के लिए, तो एंट्रेंस में स्टेप्स तो आपका कोई देखता है नहीं, ओके तो आप एक बार अगर आप ये यूज करो तो आपको ओवरऑल, आपको ये मैं आगे जब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और समझाऊंगी तो और अच्छे से ये समझेगा कि जब आप माइनस पीडीवी ले लेके आगे बढ़ते हो तो आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा दिखता है, और आप प्लस लेकर बढ़ते हो तो आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या साइन चेंजेस आता है। तो अगर आप एक बार इसको स्टिक दो तो इसी को स्टिक रहना, अगर आप ये अच्छे से समझ रहे हो तो इसी को स्टिक रहना। ठीक है समझा? हाँ, बट हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री टीचर से ये चीज कंफर्म करना कि मैम मीनिंग तो दोनों का सेम है, बट यहाँ पर हम एक्सटर्नल के हिसाब से बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ पी नहीं लिखते, हम पी एक्सटर्नल लिखते हैं, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल, एग्जैक्टली। और यहाँ पर हम सिर्फ पीडीवी लिखते हैं, इट इज बिकॉज दिस पी इज रिलेटेड टू इनसाइड मॉलिक्यूल्स गैसेस। ठीक है, हाँ समझा? ओके, ओके। एनीवन एल्स हु इज हैविंग डाउट प्लीज आस्क। मैम फिजिक्स में आपने लाइक कभी बोला इधर कि फोर्स राइट साइड है, मतलब फिर अपना डिस्प्लेसमेंट भी ये साइड हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिया, करेक्ट? हाँ, तो मैम फिर केमिस्ट्री का लाइक नहीं समझा मेरे को, कैसे? हेलो, केमिस्ट्री का यू नीड टू टॉक टू योर केमिस्ट्री टीचर। मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगी ना तो वो उनके लिए कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, प्लीज। केमिस्ट्री से इतना है, मैं एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। केमिस्ट्री में ऐसा किया जाता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, इनके मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बातें नहीं की जाती है,
सर ने शायद पी एक्सटर्नल के टर्म्स में आपको समझाया होगा कि हाँ। पी एक्सटर्नल के टर्म्स कैसे लिया। क्या बताया था सर ने? सर ने जब ये बोला होगा कि आई एम टेकिंग पी एक्सटर्नल, तो सर ने ये चीज एक्सप्लेन की होगी ना, व्हाई व्हाट टाइप ऑफ पी एक्सटर्नल, किस बेसिस पे पी एक्सटर्नल हो रहा है, ये चीज बताई होगी ना सर ने। ओम हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ बोलो। मैम सर ने कहा था वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग नेगेटिव आएगा, वर्क डन सराउंडिंग ऑन सिस्टम पॉजिटिव आएगा, राइट है ना? ये फिजिक्स में भी होगा ना? एक मिनट प्लीज 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 स्टॉप इट। मैंने अभी ये कंफ्यूजन क्लियर किया है सृष्टि, मैंने अभी ये कंफ्यूजन क्लियर किया है तुम्हारा, प्लीज ध्यान से सुनो। एक मिनट, ये सी अकॉर्डिंग टू, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तुम लोग कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। एक बात ध्यान से समझो, सर ने जब वर्क डन पढ़ाया था इट वाज माइनस पीडीवी, ही टुक एज माइनस पीडीवी, उन्होंने ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन आगे लिया था। केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हो उसका पूरा उल्टा फिजिक्स में यूज करते हो। वर्क डन बाय द सिस्टम इन फिजिक्स इज पॉजिटिव। एक मिनट, लेट मी क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल, प्लीज कंफ्यूजन साइड करो, मैं दोनों का पर्सपेक्टिव लेके समझाती हूँ। यहाँ पे I'm dividing these two columns as chemistry and physics. According to your chemistry, see, approach is going to be same for both. Please don't confuse yourself. This is chemistry point of view and this is physics point of view. समझाती हूँ दोनों में क्या पर्सपेक्टिव लिया है, उसके बाद मैं लॉ पे आती हूँ। According to chemistry point of view, जो आपका ओरिजिन लिया जाता है वो बाहर से लिया जाता है, इसीलिए आपका वर्क डन जब सर ने आपको बोला होगा तो सर ने माइन पीडीवी सॉल्व किया होगा, सर ने कहा होगा कि डन लो, उसके आगे माइनस साइन लो। ओके, फिजिक्स में क्या किया जाता है, अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू पीडीवी लिया जाता है, प्लस पीडीवी। बाहर से ओरिजिन का मतलब ये है कि आपके बाहर के रिस्पेक्ट में बाहर से काम किया जा रहा है, ऐसा शो किया जाता है। वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड, इसके बारे में मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि दिस इज केमिस्ट्री कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, आपका वर्क डन नेगेटिव कब आता है, व्हेन योर वर्क डन इज नेगेटिव। आई एम नॉट गोइंग विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, मैंने अभी तक कुछ भी सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं लाया है, प्लीज स्टेप वाइज जाओ, अभी मेरे को स्टेप वाइज जाने दो। लेट अस टेक अ पिस्टन हियर, ठीक है, लेट अस टेक अ पिस्टन हियर एंड आई एम कंप्रेसिंग दिस पिस्टन, मैं बाहर से इस पिस्टन को कंप्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं बाहर से इस पिस्टन को कंप्रेस कर रही हूँ, मैं बाहर के सिस्टम को कंसीडर कर रही हूँ, मैं बाहर से, मेरा ओरिजिन मैंने बाहर का रखा हुआ है, माय ओरिजिन इज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो मेरा पिस्टन पे मैं फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, इसी डायरेक्शन में लगा रही हूँ, ठीक है। मेरा फोर्स भी मैं किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, अंदर की तरफ, और पिस्टन मूव भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, अंदर की तरफ, क्योंकि मैं बाहर से देख रही हूँ। इन केमिस्ट्री आई एम सीइंग फ्रॉम आउटसाइड, प्लीज ध्यान से समझो। जब मैं सिस्टम को कंप्रेस कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, में केमिस्ट्री में बाहर से चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ, तो पिस्टन जिस डायरेक्शन में मैं दबा रही हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स दे रही हूँ पिस्टन को, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी पिस्टन का उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इन केमिस्ट्री व्हेन यू से देयर इज एन कंप्रेशन, you say that all your work done is what? When you say compression, your work done is what? पॉजिटिव। पॉजिटिव, करेक्ट। क्यों पॉजिटिव लेते हो, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मैंने ऑलरेडी नेगेटिव साइन बाहर लेके रखा हुआ है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मतलब वॉल्यूम VF माइनस VI होगा। सो यह अगर वर्क डन लिया जाए, वॉल्यूम इज VF माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन सर ने लिया है, क्योंकि काम हो रहा है इसलिए माइनस साइन लिया था, अगर याद हो, VF माइनस VI, प्लीज ध्यान से सुनो, VF माइनस VI, ओके। अब मेरा VF क्या होने वाला है, होने वाला है, तो माइनस ऑफ माइनस साइन बन के आपका वर्क डन इन कंप्रेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। दिस इज योर केमिस्ट्री कांसेप्ट, दिस इज योर केमिस्ट्री कांसेप्ट। ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि आप बाहर से काम कर रहे हो, ऐसा बोला जाता है कि दिस P इज एक्सटर्नल, बाहर के फोर्सेस से काम हो रहा है।
हाँ एग्जैक्टली, ये माइनस इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हमारा ओरिजिन बाहर से कंसिडर किया जाता है, समझा। अब इन फिजिक्स क्या किया जा रहा है वो समझो। फिजिक्स में बाहर के कंसेप्ट्स को नहीं लिया जाता है, फिजिक्स में गैस मॉलिक्यूल्स जो अंदर मॉलिक्यूल्स है उनके रिस्पेक्ट में बात, यहाँ पे ओरिजिन शिफ्टिंग हो रही है। इन केमिस्ट्री आप बाहर से देखते हो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हो। इन फिजिक्स आप गैस मॉलिक्यूल्स के टर्म में ही डिस्कशन करते हो, अंदर से डिस्कस करते हो, इसलिए आप पॉजिटिव लेते हो। अब ध्यान से देखो कि व्हेन इट एक्सपांड्स, चलो कंप्रेशन के टर्म्स में लेते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन समझा है, यहाँ पे भी कंप्रेशन समझाती हूँ। यहाँ पे वर्क डन आई टुक माइनस पीडीवी, यहाँ पे वर्क डन आई एम टेकिंग प्लस पीडीवी, क्योंकि मैं अंदर से ही बातें कर रही हूँ। लेट्स से कंप्रेशन का डिस्कशन करते हैं। पहले कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, मेरा सिंपल सा फंडा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मेरा वर्क डन पूरी तरीके से, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, मेरा वर्क डन पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वर्क डन भी डिक्रीज होगा मींस वर्क डन विल बी नेगेटिव हियर। अब इस मॉलिक्यूल्स के टर्म में डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल्स का फोर्स कैसा लगता है, ऐसा, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, अंदर की तरफ। दोनों का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे उल्टा है। जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होता है वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव लिया है। तो जो वर्क डन आप यहाँ पर पॉजिटिव लेते हो, क्यों लेते हो, क्योंकि आप बाहर के रिस्पेक्ट में देखते हो, और यहाँ पर आप अंदर के रिस्पेक्ट में देखते हो। दैट्स ऑल, दिस इज द डिफरेंस। हाँ, मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि आप बाहर, आप काम कर रहे हो, करेक्ट, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो मतलब इस पे काम हो रहा है, काम हो रहा है मतलब ये विल गेन द एनर्जी, एंड यहाँ पर डेल्टा यू विल बिकम पॉजिटिव। दैट्स ऑल। बोलो। हेलो पर हेलो हाँ बोलो। मीन्स पर नेगेटिव वर्क करके एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? नेगेटिव वर्क डन करके एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं मतलब, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको? वो बाहर से प्रेशर के काम हो रहा है, ऑपोजिट। हाँ, बाहर से काम हो रहा है, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, आप दबा रहे हो उसको, ठीक है। आप दबाओगे तो क्या, दिस इज, देयर इज अ वर्क डन हियर, करेक्ट, देयर इज अ वर्क डन, यू आर कंप्रेसिंग द गैस। आप कंप्रेस कर रहे हो गैस को, तो ये खुद से तो नहीं होगा ना कंप्रेशन, कंप्रेशन तो किसी को करना पड़ेगा ना, वो तो बाहर का सिस्टम है, बाहर कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ। व्हेन यू आर कंप्रेसिंग, बाहर से कंप्रेशन खुद से तो नहीं होगा, कंप्रेशन तो किसी को यूज करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब बाहर से यू आर गिविंग द एनर्जी टू द सिस्टम। ओके, दैट्स व्हाई योर सिस्टम का एनर्जी इज इंक्रीजिंग, दैट्स ऑल। ओके, बोलो। हेलो, इज देयर एनी डाउट नाउ? हाँ पूछो। हेलो, Om, you are not audible to me due to your network issue. हेलो, हाँ बोलो। हेलो बोलो। मैम, ये जो आपने अपोजिट हेलो आयुष, आई एम लिसनिंग यू, बोलो। मैम, ये जो आपने सेकंड केस बताया ना फिजिक्स वाला, हाँ मैम इसमें जो आपने ये अपोजिट सेंस बताया कि हम लोग का डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन वो क्या आपने कुछ तो अपोजिट बताया ना, वो नहीं समझा मैम। जाने दो, वो मत समझो, सिर्फ इतना ही समझो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब वर्क डन इनसाइड द सिस्टम क्या होगा, वर्क डन विल डिक्रीज, मींस वर्क डन विल बी नेगेटिव हियर। एनर्जी क्यों गेन हो रही है, क्योंकि बाहर से, ऑफ कोर्स कंप्रेशन खुद से तो नहीं होगा, कंप्रेशन कोई बाहर से ही करवाएगा, बराबर है, समझ में आ रहा है? मतलब बाहर से एनर्जी दी जा रही है कंप्रेशन के लिए, मींस एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बीइंग इंक्रीज्ड, क्योंकि ये कंप्रेशन खुद से पॉसिबल नहीं है, मींस यू आर गिविंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू गेट कंप्रेस्ड, दैट्स व्हाई योर एनर्जी इज टेकन टू बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल। और मैम वर्क नेगेटिव कैसे आएगा वो? वर्क डन नेगेटिव कैसे आएगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, हाँ, करेक्ट, योर वर्क डन डिपेंड्स अपॉन डीवी, डीवी क्या है तुम्हारा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल छोटा है, इनिशियल बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इनिशियल का नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, दैट्स व्हाई योर वर्क डन कम्स टू बी नेगेटिव हियर। मैम वो कुछ तो आपने बताया ना कि कैसे डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रहा है, फिर लेकिन हम लोग का गैस ओके, लिसन लिसन लिसन, हाँ, अगर आप सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखो, गैस मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, तो गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, बाहर की तरफ, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है,
अपोजिट है। Opposite अब अगर आप बाहर की चीजों को कुछ कंसिडर मत करो, आप बाहर से जो कर रहे हो वो रहने दो, यू आर नॉट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तुम एक ही ओरिजिन लेके बात कर सकते हो ना, यू कैन ओनली डिस्कस बाय वन ओरिजिन, यू कैन ओनली कंसिडर बाय वन ओरिजिन। अगर आप सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करो तो टॉक इन द टर्म्स ऑफ सिस्टम, व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ सिस्टम you only talk in the terms of system। system के हिसाब से क्या हो रहा है, your forces, your molecules are applying force, उनको नहीं compress होना है, they don't want to get compressed, they are applying the force from in the external direction। Om please unmute yourself and ask। मैम ये तो लाइक समझा वो इंटरनल एनर्जी क्यों पड़ता है सब। अब इधर आपने क्या बोला कि पिस्टन इज मूविंग इन द कंप्रेशन साइड, ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल्स का फोर्स ये तरफ आ रहा है, तो हम सिर्फ सिस्टम को फिलहाल कंसीडर किए, बट एक्चुअली प्रेशर सराउंडिंग से आ रहा है, तो क्यों सराउंडिंग को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? एक बात समझो, ये चीज तो देखो, एक मिनट, ये चीज तो खुद से नहीं हो सकती ना ओम, ये चीज खुद से नहीं हो सकती, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम देमसेल्फ, मतलब बाहर से ही कुछ तो गड़बड़ी की गई है जिसकी वजह से सिस्टम में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, करेक्ट है। मत अगर मैं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि हम अंदर से बाहर से कुछ भी करके हम कहाँ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, अंदर की तरफ, बट मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस होना पसंद नहीं, उनको तो फ्री रहना पसंद है ना, तो वो तो अपने आप को फ्री करना चाहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं और हम बाहर से कुछ भी गड़बड़ करके पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ कर रहे हैं, अंदर की तरफ कर रहे हैं। तो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इन फिजिक्स आई विल डिस्कस इन द टर्म्स ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है दोनों का, वो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। So this can be the explanation for negative work done as well। और मैम ये अपना केमिस्ट्री का मेन नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक क्यों पॉजिटिव, जब अंदर की तरफ पिस्टन भी जा रहा है और सब। तो लिसन, एक बात समझो, केमिस्ट्री ने सिर्फ ये किया है कि केमिस्ट्री जो तुम अभी बोल रहे थे ना कि मैम हमने बाहर की चीजें क्यों नहीं कंसीडर की, केमिस्ट्री ने वही बाहर की चीजें कंसीडर करके यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। ये जो पी एक्सटर्नल नेगेटिव लिया है ना इन्होंने, ये बाहर के सराउंडिंग को कंसीडर करके लिया है। कि तुमने अभी बोला ना कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने बाहर का कंसीडर नहीं किया, मैंने अपनी चीजों को बहुत सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई क्योंकि आपने रेफरेंस अपना सिर्फ सिस्टम लिया है। एग्जैक्टली, मैं दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि जो चीजें तुमको समझ में आ रही है जिस वे में, तुम वही वे लेके चलो, जो चीज तुमको कंफ्यूज कर रही है डोंट गो फॉर इट। बट मैम अभी यही आपने बोला कि केमिस्ट्री में लाइक एक्सटर्नल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लाइक सराउंडिंग को, तो फिर देखा जाए तो पिस्टन का कंप्रेशन भी अंदर की तरफ है, फोर्स भी अंदर की तरफ लग रहा है, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव ही आता है ना, ये केस में केमिस्ट्री में वर्क डन पॉजिटिव ही आता है ना। केमिस्ट्री में बट केमिस्ट्री ने एक स्टेप ले लिया समझाने के लिए, केमिस्ट्री ने एक स्टेप ले लिया। केमिस्ट्री ने क्या किया, माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस किया कि मेरा वो बाहर के रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो बाहर के रिस्पेक्ट में पिस्टन भी अंदर जा रहा है, पिस्टन पे फोर्स भी अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसीलिए तो इन केमिस्ट्री आपका जब कंप्रेशन लेते हो वो पॉजिटिव आता है, और इन फिजिक्स आपका जो कंप्रेशन लेते हो वो नेगेटिव आता है। समझ में आया? समझाओ। मैम मतलब लाइक एक्चुअली देखा जाए तो इधर वर्क डन जो है नेगेटिव है, बट ये सिर्फ नेगेटिव साइन की वजह से ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है। एग्जैक्टली, ये जो माइनस साइन लिया गया है ना, बाहर अराउंड समझने के लिए लिया गया है। ऐसा क्या होगा कि सिंस मैं बाहर एक्सटर्नल कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ला रहा हूँ कि मेरा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव आए। इन केमिस्ट्री दे कंसीडर द एक्सटर्नल पार्ट, इन फिजिक्स दे सिंप्लीफाई देयर थिंग्स। हाँ, सिंप्लीफाई किया इसलिए फिजिक्स में नेगेटिव आया, और वही कंसीडर किया केमिस्ट्री में, तो इसलिए और एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस करके उसको पॉजिटिव कर दिया। करेक्ट? एग्जैक्टली। तो अगर आप केमिस्ट्री को फिजिक्स के टर्म में समझाना चाहो, सराउंडिंग को लेकर फिजिक्स के टर्म में समझाना चाहो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे गैस मॉलिक्यूल से कोई डिस्कशन नहीं करना है, मेरा पिस्टन भी अंदर मूव हो रहा है, मैं फोर्स भी अंदर की तरफ लगा रही हूँ, मतलब माय वर्क डन इज पॉजिटिव। ये आप केमिस्ट्री के कांसेप्ट को फिजिक्स के टर्म में समझा सकते हो। अच्छा, समझा? हाँ, वही एक्चुअली देखा जाए तो फिजिक्स में आपने कंसीडर नहीं किया बाहर को,
इसीलिए नेगेटिव आया, और केमिस्ट्री ओम में एक मिनट, कंसीडर बाकी किया किसी तो और का भी डाउट क्लियर करने दे। एक मिनट ओम, एक मिनट रुक जा, मैं सारी चीजें वापस रिपीट करूंगी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कोई और है जिसको कुछ डाउट है, प्लीज आस्क, अनम्यूट करो और पूछो। कोई सुन नहीं रहा है ऐसा नहीं है, सुन रही हूँ मैं, सुनने के लिए ही बैठी हूँ यहाँ पे, बोलो। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। आई कैन नॉट ओपन माई चैट बॉक्स, मेरा कैमरे का सेटिंग्स डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हेलो मैम। हाँ आस्क। मैम सर ने कहा था कि बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं फिर भी गैस उसके अगेंस्ट एक्सपांड हो जाती है। क्या? बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं फिर भी जो गैस रहती है ना, वो भी हाँ। वो उसके अगेंस्ट एक्सपांड हो जाती है, तो फिर उस केस में जो उसका होगा वर्क डन बाय गैस वो कैसे आएगा मैम, समझ में नहीं आ रहा है वो। सी, वो सर ने एक्सपांशन टर्म समझाया होगा शायद, ठीक है, सर ने वो चीज एक्सपांशन में समझाई होगी। प्लीज मेरा और सन का, मैं बार बार वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम केमिस्ट्री अप्रोच मुझसे मत पूछो। मैं सिर्फ तुमको आज ये समझाने के लिए बैठी हूँ कि यू डोंट नीड टू कंफ्यूज बिटवीन द थिंग्स, ओके। मेरा चैट बॉक्स दिख रहा है बट आई एम नॉट ओपनिंग इट बिकॉज मेरा कैमरा सेटअप खराब हो जाएगा। सो आपको इश्यू होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको जो डाउट्स है आप एक एक करके पहले मेरी सारी बातों को सुन लो, उसके बाद एक एक करके अपने डाउट क्लियर करो। एंड डोंट आस्क मी दोस थिंग्स जो सर ने बोले हैं, ओके। वो सारी चीजें आप सर से क्लियर करो, वो आपको बेटर वे में समझाएंगे। मैं सिर्फ आपको दोनों का पर्सपेक्टिव समझाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। सर ने आपको क्या समझाया वो चीज मैं नहीं समझा सकती आपको, क्योंकि उन्होंने क्या रिस्पेक्ट में बोला है वो मुझे नहीं पता है, ओके। उनका रिस्पेक्ट क्या था, वो किस चीज को लेकर समझा रहे थे, उन्होंने क्या कंसिडर किया, मैं नहीं समझा सकती आपको। सो प्लीज एक मिनट सुनो, एक काम करो, पहले तुम अपने सारे डाउट्स मुझे बता दो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। वो है फर्स्ट किसका डाउट है? ओम को छोड़ के, ओम सबसे लास्ट में पूछना। फर्स्ट वो है अमन, पूछो डाउट, जो जो डाउट है एक एक करके पूछो। चलो स्टार्ट, मैं सारे आंसर एक साथ देती हूँ। गो अहेड, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, आई नीड टू कंप्लीट दिस चैप्टर एज वेल। Ask. See, if you're going to do this now, you're going to waste my time. I'm not going to clear it out, sir, please. हेलो मिस। मयूरेश, फिर क्लियर अनम्यूट करके पूछना मयूरेश। हेलो मिस। हाँ पूछो। मिस वो टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा यू डिपेंड करेगा क्या, और अगर करेगा तो कन्वेंशन हाँ क्या करेगा, करेगा। यहाँ पे हम लोग ने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के काम किया है, करेगा। ऑफ कोर्स इंटरनल एनर्जी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बच्चा। इट इज गोइंग टू, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डेल्टा यू इज गोइंग टू इंक्रीज। मैंने ये एक एग्जांपल कंसीडर किया, मैंने क्या कहा, व्हेन आई एम कंप्रेसिंग इट, जब मैं कंप्रेस कर रही हूँ देयर कैन बी मेनी वेज टू कंप्रेस इट, so one of them you can use the condition of temperature as well. Of course करेगा। Anything else? मिस उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? टेम्परेचर का साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हो? टेम्परेचर का साइन कन्वेंशन तो इन सब चीजों पे डिपेंड ही नहीं करता। You say if you say it is 200 degrees Celsius, it simply it is 200 degrees Celsius. That's all. हाँ मिस, समझा। Yeah. Okay. Next. Wait for the next doubt. Wait for the next doubt. फिर मैं वापस ये सारी चीजें क्लियर करती हूँ। Wait for the next doubt. मैम डेल्टा यू का बताओ। मैं ये चीजें वापस एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। हेलो, मैं ये चीजें वापस एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछो। I'm again and again I'm repeating the same things. If this things is going to continue here now, I'm not going to either I'm going to leave your lecture, और if मैं सीधा सर से बात करूंगी कि you are doing this, मैं जब पूछ रही हूँ कि पूछो तो आप पूछते नहीं हो, फिर बाद में आप चैट बॉक्स में बोलते हो कि आपका कोई सुन नहीं रहा है। मिस वो ओम पूछ रहा है क्या वो डेल्टा यू का साइन कन्वेंशन बताना। मैंने अभी कहा ओम को कि ओम मैं ये चीज समझाऊंगी, मैंने कहा ना ओम। अरे मैम एक्चुअली मेरे को लगा आप इसके बारे में बात कर रही हो सामने। एनीथिंग एल्स? कोई डाउट है? नहीं मैं समझ गया।
शुड आई गो अहेड? हाँ मैम। अब जरा ध्यान से समझो, मैं वापस जो भी समझाने जा रही हूँ। सी, आप केमिस्ट्री अप्रोच, अगेन प्लीज मेरी बातें खत्म होने देना, उसके बाद कुछ पूछना। आप केमिस्ट्री अप्रोच लो, आप फिजिक्स अप्रोच लो, दोनों अप्रोच में अगर आप किसी भी एक अप्रोच से आगे बढ़ते हो, यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, केमिस्ट्री में जब आप वर्क डन ले लेते हो, आप स्टार्टिंग में ही माइनस साइन लेते हो, ये बोलकर कि यू आर टेकिंग हियर पी एक्सटर्नल। ओके, इट मीन्स वो लोग नेगेटिव साइन ये पर्सपेक्ट से लेते हैं कि वो सारी चीजें बाहर से देख रहे हैं। ओके, सो जब कंप्रेशन होता है, जब चीजें कंप्रेस होती है, ओके प्लीज ध्यान से सुनो, व्हेन द थिंग्स आर कंप्रेस्ड, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और यू नो दैट योर वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डीवी। डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल छोटा हो रहा है, इनिशियल बड़ा था, तो इनिशियल का साइन आगे आएगा, मतलब माइनस ऑफ माइनस बन के आपका यहाँ पर जो वर्क डन मिलता है वो नेगेटिव मिलता है, सॉरी यहाँ पे जो वर्क डन मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो आप यही बोलते हो कि जब आपका सराउंडिंग, व्हेन योर सराउंडिंग डूज अ वर्क ऑन योर सिस्टम, वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, you take in chemistry as positive. Work done by surrounding on system you take as positive. समझा? in chemistry you take, chemistry और physics में यही चीज उल्टी है, क्योंकि chemistry में चीजें बाहर के point of view से ली जाती है और ऑलरेडी एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे जब आप इसको पीडीवी को सॉल्व करते हो तो आपको नेगेटिव आंसर आता है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये नेगेटिव साइन आने का सिर्फ इतना रीजन है कि आप बाहर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। क्लियर विद द पार्ट? एंड इन केमिस्ट्री वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम बिकम्स पॉजिटिव, बट इन द केस ऑफ फिजिक्स, इफ यू अंडरस्टैंड फिजिक्स, याद करने का तरीका फिजिक्स में सिंपल होता है कि जब आप कंप्रेशन करते हो, आप स्टार्टिंग में ही फिजिक्स में वर्क डन प्लस पीडीवी लेते हो, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस साइन इंट्रोड्यूस नहीं करते हो, क्योंकि इन फिजिक्स यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ सिस्टम। आप बाहर वालों को वैल्यू नहीं देते, आप सराउंडिंग को वैल्यू नहीं देते, आप सिस्टम को कंसिडर करते हो। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग इट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मींस वीएफ माइनस वीआई, फाइनल माइनस इनिशियल, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल बड़ा होगा, फाइनल छोटा होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं लिया है, इसीलिए वर्क डन मेरा नेगेटिव आ रहा है। जब मेरा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है इन फिजिक्स वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम इज नेगेटिव। ये डिफरेंस आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में, कि केमिस्ट्री में बाहर से देखा जाता है, इसलिए कंप्रेशन में वर्क डन को पॉजिटिव लिया जाता है, एंड फिजिक्स में अंदर से सिस्टम को देखा जाता है, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है। बाहर के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करो तो पिस्टन को देखो, पिस्टन को अंदर की तरफ ही ढकेल रहे हैं और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ ही हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन इज पॉजिटिव हियर, एंड हियर योर गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड। तो पिस्टन को किसी तरीके से अंदर की तरफ ढकेला जा रहा है, बट गैस मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स को ओरिजिन कंसीडर कर रही हूँ, सो योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वर्क डन को यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। This is what is the difference between chemistry and physics. That in chemistry, by surrounding on the system, work done by surrounding on the system is taken positive. In physics, work done by surrounding on the system is taken to be negative. याद रखने का तरीका है, सिंपल कंसेप्ट है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ फिजिक्स में तो समझ जाने का वर्क डन इज नेगेटिव, दैट्स ऑल। क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीमेंट मींस डीवी, वीएफ माइनस वीआई, वीएफ छोटा हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से, कंप्रेस होने की वजह से, तो डीवी का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और स्टार्टिंग में ही वर्क डन मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, पीडीवी यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं लिया है, जिसकी वजह से वो माइनस साइन मुझे वर्क डन के सामने दिखेगा।
आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट नाउ? केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी तक मैंने डेल्टा यू के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है। अब कोई डाउट है इस दोनों में तो पूछो, डेल्टा यू को छोड़ के। अमन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। जो डाउट है अनम्यूट करके पूछो प्लीज। अमन पूछ लो, चीजें क्लियर रखोगे आगे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों कंसेप्ट क्लियर है? केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, बट ये बात दिमाग में रखना है कि वर्क डन जब भी लोगे तो आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आपको रखना है, वरना आपको आंसर यहाँ पे माइनस आएगा। समझ में आया? तो अगर केमिस्ट्री रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो गो फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो गो फॉर फिजिक्स, दैट्स ऑल। मैं फिजिक्स के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रही हूँ पूरी तरीके से। अब मैं जहाँ पर मुझे जरूरत लगेगी बताने की कि अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो क्या चेंजेस करना है वो मैं बताती जाऊंगी। आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कंसेप्ट। आई कैन एक्सप्लेन यू इन केमिस्ट्री कंसेप्ट एज वेल, बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स का पॉइंट्स आर क्वाइट क्लियर। फिजिक्स में आपको ये एक्स्ट्रा माइनस साइन भूल गए तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कुछ भी, ठीक है? सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स जो मैंने अर्लियर समझाया। नाउ प्लीज लिसन मी प्रॉपरली, ध्यान से सुनो, चीजों को कंफ्यूज मत करो। फिजिक्स सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करता है, इसलिए प्लस के टर्म्स में बात करता है। केमिस्ट्री बाहर के सराउंडिंग के टर्म में बात करता है। मिस फिजिक्स में क्या बोला मेरे को समझा नहीं। फिजिक्स के थियरी पेपर में केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन ले तो चलेगा ना? चलेगा, बट स्टार्टिंग में आप वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पीडीवी ले रहे हो तो ये माइनस एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ। तो अगर ओके नहीं करते हो, अगर आप फिजिक्स के टर्म में जाते हो आप सीधा सीधा आगे बढ़ जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके मिस। ठीक है? अब ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या समझा रही हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं पहला केस कंसीडर कर रही हूँ, दैट इज एक्सपांशन। मेरे को लगता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग फिजिक्स, मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन का एक कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ता है, बट स्टिल जो आपको इजी लगता है यू कैन गो फॉर दोस, आई डोंट हैव इश्यू विद दैट। ओके, आई एम गोइंग फॉर एक्सपांशन फर्स्ट। मैं वापस से सारी चीजें फिजिक्स टर्म्स में समझाती जा रही हूँ, ठीक है? केमिस्ट्री टर्म में याद रखो कि उसका साइन उल्टा आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आता है। जहाँ पे मैं फिजिक्स में पॉजिटिव बोलूंगी, याद रखना ये एक्स्ट्रा नेगेटिव आके उसको नेगेटिव बना देता है। जहाँ पर फिजिक्स में मैं नेगेटिव बोलूंगी, समझ जाना कि ये एक्स्ट्रा नेगेटिव आके उसको पॉजिटिव बना देता है। समझा? चलेगा, कोई बात नहीं, जो आपको इजी लगता है आप उसके थ्रू जाओ, नो इश्यू, दैट्स ऑन यू, दैट इज एवरीथिंग ऑन यू। मेरे को भी फिजिक्स, आई एम वेरी मच स्टिक टू फिजिक्स, इसलिए मुझे फिजिक्स इजी लग रहा है, तो आपको जो इजी लगता है आप उस तरीके से जाओ, बट याद रखना जब आप लिखोगे तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। और अगर आपका फिजिक्स का टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ फिजिक्स टेक्स्ट बुक के साथ तो वो रॉन्ग कर देगा, तो ये एक प्रॉब्लम है बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज कंसेप्चुअली दोनों भी चीजें करेक्ट है। अगर वो फिजिक्स टीचर को ये दिमाग में रहा कि आपने ये माइनस अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो वो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ बिग डील। ओके, सब्जेक्ट्स कभी भी नॉलेज चेंज नहीं करते हैं, चाहे आप फिजिक्स से किसी चीज को पढ़ो या केमिस्ट्री से किसी चीज को पढ़ो, अप्रोच इज ऑलवेज। Is the things visible to everyone whatever I'm writing? Is the things visible to everyone whatever I'm writing? अभी कुछ लिख रहे हो तो नहीं दिख रहा। Now things are visible. Wait for a while, I think it's muted, I think it's hanged. Madhuri ma'am, I'm leaving and I'm entering again. I think मेरा मोबाइल हैंग हुआ है, so please
मानसी लीव हो गई। पाणी लय बेकार कडू ते त्याच ते कसं काय होईल वेल्डिंग करायचं आतमध्ये असं त्याच्या पोकळ आहे ती बांबू Madhuri ma'am, am I visible to everyone? सुन रही हूँ। मैं जो भी लिख रही हूँ वो दिख रहा है इजीली? हाँ, एक इसमें दो, तू दोनों इसमें लॉगिन किए क्या? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, आई थिंक कुछ इश्यू हुआ है। Yes, I am taking again. This is a cylinder with an ideal gas inside. This is massless, frictionless piston. Okay, these are the gas molecules. The first case I am taking is expansion. According to me, of course, in expansion, your volume increases. Volume increases. So your work done is given by PdV. So volume is increasing. dV. What is dV? dV is change in volume. Change in volume. Okay. That is equals to change in volume is what? V final minus V initial. When it is expanding, आपका V final बड़ा होगा, V initial छोटा होगा. Expansion हो रहा है, बढ़ रही है volume. So V final minus V initial is going to be a positive value. Correct. So your work done in expansion is going to be positive. It means, according to physics, when you take work done as plus PdV instead of minus PdV, जब आप work done को plus PdV के terms में ही discuss करते हो, तो in physics, work done by system is taken to be positive. मतलब जब मेरा system काम करेगा, I'll take the work done as positive. Keep it in mind. यहाँ पे यही चीज नेगेटिव आती है इन केमिस्ट्री. इन केमिस्ट्री यू टेक वर्क डन बाय सिस्टम टू बी नेगेटिव. ओके, क्लियर? क्योंकि डीवी तो पॉजिटिव आता है, बट ऑलरेडी एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आप यहाँ पे रखते हो. करेक्ट. तो उस माइनस साइन की वजह से पूरा टर्म नेगेटिव के टर्म में दिखने लग जाता है. सो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. दैट्स ऑल. Physics talks in the terms of system, and chemistry talks in the terms of surrounding as well as system. Okay, so work done by the system in physics is taken to be positive. In chemistry, work done by the system is taken to be negative. मैंने समझा दिया क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा साइन नेगेटिव होता है यहाँ पे. Are you clear with the concept? Are you clear with the concept? किसी को कोई डाउट है? फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? प्लीज से yes or no. नो. आयुष क्या हो गया? अब क्या डाउट है? नहीं मिस, मतलब कोई डाउट नहीं है, ये बोल रहा हूँ. नो. ओके, फाइन, ठीक है. आई एम गोइंग अहेड नाउ. इन एक्सपांशन मेरा याद रखने का तरीका, जिसको रखना है रख सकते हो. वॉल्यूम इंक्रीजेस, वर्क डन इज गिवन बाय पीडीवी. वॉल्यूम इंक्रीजेस मींस वीएफ माइनस वीआई जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब वर्क डन इंक्रीज होगा. सिंपल याद रखो. वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब वर्क डन इंक्रीज होगा. वर्क डन इंक्रीज होगा मींस वर्क डन इज पॉजिटिव. अब यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स खुद से एक्सपांड हो रहे हैं. दे आर यूजिंग देयर एनर्जी. ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स खुद से एक्सपांड हो रहे हैं. दे आर यूजिंग देयर एनर्जी. तो एनर्जी का डिक्रीमेंट होगा. तो व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, योर डेल्टा यू इज टेकन टू बी नेगेटिव, क्योंकि एक्सपांड करते समय ये इस पिस्टन को धक्का मार रहे हैं. ठीक है, and they are using their energy to get expand. फैलने के लिए अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं. जैसे जैसे ये पिस्टन बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप को फैलाने के लिए अपनी एनर्जी यूज करते हुए जा रहे हैं. तो जब अपने आप को फैलाने के लिए वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो जो एनर्जी होगी वो अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं फैलने के लिए दे आर यूजिंग द एनर्जी. उनको जगह ज्यादा मिल रही है. ये तरीके से याद रख सकते हो.
कि ये जो रूम है, समझो ये सब तुम लोग मॉलिक्यूल्स हो, पहले छोटा सा रूम था, अब रूम बड़ा होता जा रहा है, तो जगह बढ़ती जाएगी, तो तुम थोड़ी ना चिपक चिपक के बैठोगे, तुम क्या करोगे, इधर उधर भागना शुरू करोगे। जब इधर उधर भागना शुरू करोगे तो अपनी एनर्जी को यूज करोगे। जब अपनी एनर्जी को यूज करोगे, जब वॉल्यूम बड़ा होगा, इधर उधर भागोगे, अपनी एनर्जी को यूज करोगे। व्हाट इज डेल्टा यू? अगेन डेल्टा यू इज यूएफ माइनस यूआई, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी अब क्या होगी, जब तुम यहाँ वहां भाग गए, तो जब तुम यहाँ वहां भाग गए, आपने अपनी एनर्जी यूज कर ली है, करेक्ट, तो फाइनल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इनिशियल के कंपेयर में, है ना। तो फाइनल एनर्जी इनिशियल के कंपेयर में, मतलब इनिशियली आपके पास ज्यादा एनर्जी थी, आपने से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ वहां भागने में यूज कर ली, तो फाइनल एनर्जी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। फाइनल एनर्जी आपकी कम हो गई, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है, तो यू का वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब गैस एक्सपांड होगा, तो उसके अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ वहां भागेंगे और अपनी एनर्जी को यूज करेंगे। तो जब आप वो अपनी एनर्जी को यूज करेंगे, उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो एनर्जी नेगेटिव लेना है। वॉल्यूम का एक्सपांशन तो वर्क डन पॉजिटिव, एनर्जी का डिक्रीमेंट तो एनर्जी नेगेटिव। तो जब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा। आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट? Are you clear with the sign convention? When in physics work done is positive, work done by the system, यहाँ पे system काम कर रहा है, system expand हो रहा है, work done by the system is taken to be positive. Work done is equals to PdV. dV बढ़ रहा है, dV का वैल्यू VF minus VI, VF बढ़ रहा है, VF बढ़ा है तो work done positive आएगा। In chemistry work done by system is taken to negative because वहां पर सिंपल पीडीवी के साथ काम नहीं करते, माइनस पीडीवी के साथ काम करते हैं। तो भले इसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, पर इसके आगे का एक्स्ट्रा माइनस साइन दिखता है, जिसकी वजह से हम केमिस्ट्री में बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव। दैट्स ऑल। सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर इज एन एक्सपांशन, एक्सपांशन होगा मतलब सिस्टम बढ़ रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। जब सिस्टम बढ़ रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और ऑफ कोर्स काम कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, और एनर्जी यूज कर रहा है मतलब वहां पे डिक्रीज हो रही है एनर्जी, एंड एनर्जी विल बी नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव तो एनर्जी नेगेटिव। दैट्स ऑल। आर यू क्लियर विद द फर्स्ट कांसेप्ट नाउ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुड आई गो अहेड? अगर इवन केमिस्ट्री और फिजिक्स में कंफ्यूज भी हो रहे हो तो भी पूछ सकते हो, मैं वापस समझाने के लिए तैयार हूँ। या इन केमिस्ट्री यहाँ पर नेगेटिव आएगा, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है इन केमिस्ट्री, बट इन फिजिक्स इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि स्टार्टिंग से प्लस प्लस कंसीडर करके चला जाता है। क्लियर? शुड आई गो अहेड? पक्का? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कंप्रेशन। एक्सपांशन हो गया, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स बात कर रही हूँ। पिस्टन, गैस मॉलिक्यूल्स, किसी तरीके से पिस्टन को अंदर की तरफ ढकेला जा रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ आना है, ठीक है। कीप इट इन माइंड, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वर्क डन इज गिवन बाय PdV, P इज प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर रहने दो, प्रेशर को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, प्रेशर को साइड में रखो, प्रेशर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं। PdV VF माइनस VI, dV इज VF माइनस VI, ओके। अब जब डिक्रीज हो रहा है, दिस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम का डिक्रीमेंट, तो VF क्या होगा मेरा, VF क्या होगा तुम बताओ, VF बड़ा होगा कि छोटा होगा? आस्क anyone, unmute yourself and say VF बड़ा होगा कि VF छोटा होगा while compression? वॉल्यूम बढ़ेगा कि वॉल्यूम कम होगा? कम होगा। कम होगा। So VF is smaller than VI, VF is greater, VI is greater, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब इसीलिए वर्क डन बाय सराउंडिंग, बाहर से कोई तो काम कर रहा है ना इसको कंप्रेस करने के लिए, तो वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये कंप्रेशन करने के लिए कोई तो बाहर से काम कर रहा होगा, खुद से तो कंप्रेस होगा नहीं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, work done on the system in physics is taken to be negative, by the system positive, on the system negative। वहीं पे केमिस्ट्री के टर्म में बात करते तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ पे था,
ये नेगेटिव, एक्स्ट्रा वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव बन के इसको क्या बता देता, वो पॉजिटिव बना देता। तो इन केमिस्ट्री वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। समझ में आया? क्लियर हुआ कंसेप्ट? मीन्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एक्सपांशन वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव। इन फिजिक्स वॉल्यूम कम होगा, इन योर वर्क डन विल बी नेगेटिव। दैट्स ऑल। आर यू क्लियर विद दोस दिस बोथ कांसेप्ट्स? हेलो, क्लियर विद? क्योंकि एक ही चीज को आगे हर जगह यूज करना है। बोलो आयुष। हेलो बोलो आयुष। हाँ बोलो, मैं मैम। सुन रही हूँ। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। एक्सपांशन करेंगे तो मैम प्रेशर घटेगा यू ना? आर नॉट ऑडिबल टू मी। एम आई मैंने यहाँ पे प्रेशर को किसी ऑडिबल? तरीके से कांस्टेंट रखा है। प्रेशर को मैंने किसी तरीके से कांस्टेंट रखा है। आई एम मतलब नॉट ऐसे रख डिस्कसिंग इन द सकते टर्म्स हैं? ऑफ प्रेशर। कर सकते हो, देयर आर मेनी मशीन्स यू कैन डू दिस थिंग्स। कर सकते हो या ओके। मैंने प्रेशर के टर्म्स में कुछ बात ही नहीं की है कि कंफ्यूजन हो, ऐसा कोई नहीं है। कहाँ आगे जाके हम प्रेशर के टर्म्स में भी बात करेंगे। वी विल डिस्कस नाउ ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। क्लियर हुआ क्या? पहले ये कंफ्यूजन क्लियर करो, क्योंकि इस पे पूरा सम्स बेस्ड है। तुम्हारा सम्स में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस मेरे को इससे मतलब है। शुड आई गो अहेड? ओके लेट्स गो अहेड। अब एक बात याद रखो, सिंस आई एम फिजिक्स टीचर, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी टॉक इन द टर्म, आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ओके लेट्स टेक, अप्रूव करते हैं जरा। लेट अस टेक एन सिलेंडर अगेन। ठीक है, ये W इज इक्वल्स टू PdV लिया है, वो समझा रही हूँ, अब ध्यान से देखते जाओ। इट कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ, लेट अस कंसीडर n मोल्स। n मोल्स का आइडियल गैस है अंदर। ठीक है, दिस इज अ पिस्टन। ठीक है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन। हमको पता है कि जो फोर्स अप्लाइड बाय दिस गैस मॉलिक्यूल्स होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। इस पर्टिकुलर जो भी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पे जो भी प्रेशर लगेगा, दैट इज व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। सो F इज इक्वल्स टू P इनटू A। ओके लेट्स गो अहेड। नाउ मेरा जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस कंसीडर उसका जो डिस्प्लेसमेंट किया गया वो dx अमाउंट से किया गया। ठीक है, जो प्रेशर का जो ये जो पिस्टन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो dx अमाउंट से हुआ है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट को भी, मैं सिस्टम को कंसीडर करके चल रही हूँ, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। Okay, yeah. Now we'll talk in the terms of work done. ठीक है, dW is equals to, since dx displacement ले रहा है, dW is equals to force into displacement f dx. Correct है? F is given by P into A dx. P is the pressure, A is the area of cross section, and dx is the that displacement. And area into displacement, area into dx, this will give you a volume. But of course dx है, छोटा वॉल्यूम है, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो वॉल्यूम भी छोटा कंसिडर किया जाएगा। सो dW इज इक्वल्स टू PdV। अब ऑफ कोर्स दिस इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालना है, यूनिट टू इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल तक, जहां से जहां तक जा रहे हो। dW इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, दैट इज यहाँ पे भी इंटीग्रेट होगा, VI से VF PdV। मतलब यहाँ पर इन स्टार्टिंग ही इसको पॉजिटिव के टर्म्स में बात किया है, गैस मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात किया है। वही चीज इन केमिस्ट्री बाहर के टर्म्स में लेकर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लिया जाता है। समझ में आई चीज है? आर यू क्लियर विद दिस डेरिवेशन? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। वंस मोर हो गया, ये सिलेंडर कंसीडर किया, दिस इज द पिस्टन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, पिस्टन बाहर की तरफ, ऑफ कोर्स मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, बाहर की तरफ जाएगा, dx विल बी द डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट?
फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। dx का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो भी dx का डिस्प्लेसमेंट होगा dx इनटू एरिया विल गिव यू अ वॉल्यूम, करेक्ट है ना। हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स इज p इनटू a इनटू dx, a इनटू dx इज b dv, सो आपका dw जो आया वो p dv आया। इन केमिस्ट्री आप ऑलरेडी एक माइनस साइन बाहर से लेते हो, आप ये बोलते हो कि चीजें बाहर से हो रही है इसलिए माइनस साइन लिया है। इन केमिस्ट्री इन फिजिक्स आप ऐसा नहीं करते, इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का साइन उल्टा हो जाता है। समझ में आया? dw इज इक्वल्स टू, आप इंटीग्रेट करोगे, नहीं है, सारी चीजें अंदर से कंसिडर की गई है। Should I go ahead? Should I go ahead? Okay. Now, according to the law of thermodynamics, first law of thermodynamics को explain करने जा रही हूँ, ध्यान से समझो। First law of thermodynamics बोलता है कि समझो अगर आपने एक सिस्टम को Q amount of heat दिया है, you have given a Q amount of heat to the system, अब ये सिस्टम क्या करेगा, इस Q amount of heat में से कुछ अमाउंट जो है वो टोटल एनर्जी को चेंज करने के लिए यूज करेगा और बाकी के बचे हुए अमाउंट से वर्क डन करेगा। According to the first law of thermodynamics, it explains that when you give a Q amount of heat to the system, some amount of heat will be used by the system to change its internal energy and the remaining amount will be used for the work done. यही चीज होती है आपकी हर जगह पर, and this law is applicable everywhere. हर जगह पे ये चीज एप्लीकेबल है। कभी भी आप जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे पूरा का पूरा वर्क डन नहीं होता। कभी भी मैं जितना एनर्जी लगा रही हूँ सारा का सारा तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, सारा के सारे का वर्क डन नहीं होगा, समझा? मीन टोटल अमाउंट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, बट स्टिल वी विल कंसीडर सम केसेस, एक आइडियल केसेस किया जाएगा कंसीडर आगे। बट लेट इज क्लियर, व्हेन यू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ टोटल Q, so total Q is the summation of change in internal energy plus work done. Some amount is used in the change in internal energy and some amount is used in the work done. यही चीज जब आप केमिस्ट्री में लिखते हो, of course this will be written in the terms of delta U plus P dV. यही चीज जब आप केमिस्ट्री के टर्म में लिखते हो, इसको ध्यान मत दो, आप ऐसा लिखते हो Q is equals to delta U minus P dV. यहाँ पे आप माइनस पहले से ही ले लेते हो, यहाँ पे प्लस लिया है, समझा? तो केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट लोगे तो ये जो पूरी चीजें हैं ये इस तरीके से चलेंगी, और फिजिक्स वाला लोगे तो ये इस तरीके से चलेंगी। तो मैं फिजिक्स के हिसाब से जा रही हूँ। अगर आप ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम केमिस्ट्री के हिसाब से यूज करो तो आपको ये यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आप फिजिक्स के टर्म में ले रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको पता है ये माइनस साइन कहाँ से आया है, ये एक्सटर्नल की वजह से पीडीवी के साथ आया है। यहाँ पे भी फॉर्मूला यही है, बट जब आप इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, W को पीडीवी सब्सटीट्यूट करो तो आपको पता है W इन केमिस्ट्री में यू टेक W एज माइनस पीडीवी, इससे ये माइनस आ गया। होप यू आर क्लियर, होप यू आर क्लियर विद द थिंग्स। So when you talk in the terms of physics, you will go for this formula. When you will talk in the terms of chemistry, you will go for this formula. Actually में formula यही है, यहाँ से ये आया है, but in chemistry you take W as minus PdV. In physics you take W as PdV only. And मैंने बताया कि Q minus PdV और plus PdV होता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? सम सॉल्व करते समय आपको ये चीज दिमाग में रखना है हमेशा। ओके मैंने इसलिए ये समझाया क्योंकि आप बड़े बड़े इवन बहुत से टीचर्स भी होते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस कि जिनको आप अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के टर्म में पूछोगे तो दे गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर पूरा साइन कन्वेंशन ही उल्टा हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये चीजें क्लियर कर रही हूँ कि केमिस्ट्री के अप्रोच से जाओ या फिजिक्स के अप्रोच से जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी फिजिक्स टीचर को भी नहीं होनी चाहिए, बट आपको ये चीजें दिमाग में रख के चलनी है। और आपको ये माइनस साइन क्यों आया है वो हर बार आपको फिर समझाना पड़ेगा कि आपने ये क्यों माइनस साइन कंसिडर किया है, ये जो एक्स्ट्रा माइनस है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमेशा यही एक्सप्लेन करता है कि व्हेन यू गिव क्यू अमाउंट, सम अमाउंट इज यूज्ड इन द इंटरनल एनर्जी एंड सम अमाउंट इज वर्क डन। ये लॉ इज यूनिवर्सल, बट व्हेन यू टेक अ माइनस पीडीवी यू नीड टू एक्सप्लेन कि ये वर्क डन को आपने माइनस पीडीवी माइनस साइन आ गया। तो आप जब केमिस्ट्री के साथ जाओगे यू विल यूज दिस फॉर्मूला, जब इस पार्ट में यूज करोगे, वरना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज सिमिलर टू everything in the world, either you talk in the terms of chemistry or you talk in the terms of physics. Should I go ahead then? कोई प्रॉब्लम नहीं है। Of course I will not talk in the terms of chemistry, मैं फिजिक्स के टर्म में ही जाऊंगी।
Q is equals to delta U plus W. Q is equals to delta U plus W की जगह पे मैंने plus PD भी substitute किया है. Okay. Now we will go ahead. Let's take the cases. Let's take the cases. Okay. Let us consider कि कोई काम हुआ ही नहीं है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ. ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम में, तो मेरा सारा का सारा हीट किस में चला जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में. करेक्ट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में. ऐसा एग्जांपल बताओ कोई कभी देखा है कि जहां पर सारा का सारा अमाउंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हो जाए और वर्क डन ही ना हो, वॉल्यूम ही चेंज ना हो? लेटेंट हीट. करेक्ट है, लेटेंट हीट में ऐसा होता है. लेटेंट हीट का मतलब क्या है? होता ही यही है ना कि जब आप समझो, एक एग्जांपल हो कि आपने एक आइस का क्यूब लिया, उस आइस के क्यूब को अगर आपको समझो आपने उसको हीट देना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए वो सारे हीट को यूज करता है और अपने वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं करता. समझ में आया? इन स्टार्टिंग इट डू नॉट डू एनी वर्क डन. स्टार्टिंग में कोई वर्क डन नहीं करता, वो अपनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यूज करता है. ठीक है. सो जब भी आपका मेल्ट होता है, ऑफ कोर्स होता है धीरे धीरे, बट वॉल्यूम ऑफ कोर्स सी, ऑफ कोर्स इन स्टार्टिंग इट इज अ क्यूब, आफ्टरवर्ड्स इट गोज टू लिक्विड स्टेट. तो वहां पे तो पूरा स्टेट चेंज हो रहा है. वहां पे मैं सीधा इन टर्म्स में बात नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ ये बताना था कि कुछ ऐसी जगह होते हैं जहां पर लेट्स टेक एन कंटेनर. एक कंटेनर लो, ठीक है, वो अच्छे से समझोगे, लेटेंट हीट के कंसेप्ट पे नहीं जा रही हूँ मैं. एक कंटेनर लो और उसमें तुमको पानी गर्म करना है. जब उस कंटेनर को तुम उसके ऊपर रखते हो, क्या बोलते हैं, गैस के ऊपर रखते हो, तो वो कंटेनर क्या करता है? पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है. कंटेनर का शेप तुरंत चेंज हो जाता है क्या? नहीं, पहले वो गर्म होता है, इट गेट्स हीट, उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस स्टार्टिंग में नहीं आता. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर व्हेन यू गिव अ हीट that is used for total amount in a change in the internal energy. No work is done here. Are you clear? So Q is equals to delta U. When there is no volume change, Vf minus Vi is equals to 0, then the work done is 0 and your total heat energy is used in changing the internal energy. Are you clear? Should I go ahead? एक चीज तो समझा ही चुकी हूँ. The next point कि जब वर्क डन पॉजिटिव होगा, आपका इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा, डेल्टा यू इज नेगेटिव. जब वर्क डन नेगेटिव होगा, योर इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव. ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड. एक्सपांशन का केस, एक्सपांड हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स भागने में या एक्सपांड होने में अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, सो डेल्टा यू इज नेगेटिव, डिक्रीज होती है एनर्जी. व्हेन देयर इज एन कंप्रेशन, वर्क डन इज नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बाहर से काम कर रहे हो, वो जो भी काम आप कर रहे हो वो सारा काम हीट एनर्जी देगा. किसको हीट एनर्जी देगा? आपके अंदर के मॉलिक्यूल्स को. एंड योर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, डेल्टा यू इज पॉजिटिव. समझा? सो व्हेनेवर वर्क डन इज पॉजिटिव, डेल्टा यू इज नेगेटिव. वर्क डन इज नेगेटिव, डेल्टा यू इज पॉजिटिव. आर यू क्लियर? दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. अब मैं बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम के टर्म्स में ही बातें करूंगी. So in physics, work done by the system is positive, work done on the system is negative. Keep it in mind. That's all. Should I go ahead? Things are clear? इस एग्जाम्पल के लिए कुकिंग एग्जाम्पल लो, आइस का एग्जाम्पल मत लो, कुकिंग का एग्जाम्पल लो. आप कंटेनर को जब गैस के ऊपर रखते हो, कंटेनर कभी एक्सपांड नहीं होता इतना जल्दी. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो भी हीट आप देते हो वो सारा का सारा हीट वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में ले लेता है, यूज कर लेता है, और एक्सपांशन नहीं करता. I'll go for 2 to 3 minutes more because I wasted my time in your doubts. How you are clear with this much? कोई डाउट है? क्योंकि मैं पूरा चैप्टर फिजिक्स के टर्म में समझाने वाली हूँ और आपको चीजें समझना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछो, मैं टाइम दे रही हूँ इन चीजों को. हेलो. Hello. Okay, I'm going ahead. किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क. हेलो. हेलो. ये जो आपने बीच में भी एक क्यूब का कंसेप्ट डाला ना,
ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। क्या मतलब मतलब? आपने जो मैम वो जो एक्सपांशन और कंप्रेशन के लिए हमेशा क्यू एसेंशियल रहेगा। क्या मतलब समझा नहीं मुझे, क्या बोल रहे हो? मैम मतलब जब अगर एक्सपांशन होगा गैस हाँ। मॉलिक्यूल्स उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर करेंगे, इंक्रीज करें, तो हम लोग को गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देना पड़ेगा या वो अपना खुद का एनर्जी यूज करेंगे? एक्सपांशन में नहीं, एक्सपांशन करते समय तो वो अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन इजीली एक्सपांड वहां पर सी क्या होता है, जब आप किसी आपने लेट्स टेक, तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारे और बहुत सारे फ्रेंड्स को तुमको और मैंने तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स को क्या किया है, एक छोटे से कंटेनर में रखा है, अचानक से मैंने तुम्हारे कंटेनर को एक्सपांड कर दिया, बड़ा कर दिया, तुम वहीं बैठे रहोगे क्या चिपक चिपक के? नहीं, तुम अपनी एनर्जी यूज करोगे और दूर दूर जाकर बैठोगे, मतलब वहां पर तुम खुद की एनर्जी यूज कर रहे हो। जब चीजें एक्सपांड हो रही है, जगह बढ़ रही है, तो गैस मॉलिक्यूल्स भी एकदम फ्री मॉलिक्यूल्स है, उनको चिपक के रहना पसंद नहीं। जैसे ही वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपांड होते हैं वो अपनी एनर्जी को यूज करके अपने आप को उसी वॉल्यूम में एक्सपांड कर देंगे, मींस दे आर यूजिंग देयर एनर्जी and your work done comes to be negative, your energy comes to be negative here। वहीं पे जब आप चीजों को कंप्रेस करते हो, मैं तुमको बोलूं कि एक छोटे से कंटेनर में 10 लोगों को ले जाके दबा के बिठा दूं, जबरदस्ती बैठोगे ना, गुस्सा तो आएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो समझ में आ रहा है? सो व्हेन देयर एक्सपांशन, वो स्प्रेड होने के लिए अपनी एनर्जी यूज कर लेते हैं। व्हेन देयर इज कंप्रेशन, कंप्रेशन तभी पॉसिबल है जब कोई चीज बाहर से की जाए। तो जब आप बाहर से कंप्रेस करते हो, आप काम करते हो, तो उनको इंटरनल एनर्जी मिलती है और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स ये एनर्जी बाहर से मिली हुई है। क्लियर? आयुष, आर यू क्लियर? आयुष, आर यू क्लियर? Okay, so this is where your first law V, where your PdV, of course, P is the pressure, dV is the change in the volume. This was one case when your no work is done, means there is no change in the volume, and the total amount of heat that you are giving is used for the change in the internal energy. Last statement for your first law of thermodynamics. Here I'll stop and I'll take one example here. This law, this first law of thermodynamics, is an extension to your conservation of energy. Okay, conservation of energy और इसमें क्या डिफरेंस है वो समझाती हूँ। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हो, जब उस लॉ के बारे में बात करते थे हम पहले, तो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते थे कि अवर सिस्टम इज आइसोलेटेड, मतलब ना हीट बाहर जा रहा है ना हीट अंदर आ रहा है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सटेंशन है। यहाँ पर वो अगर हीट एक्सचेंज हो भी रहा है तो भी वो ये बात समझाता है कि जो भी एनर्जी इस सिस्टम में आ रही है या तुम दे रहे हो इस सिस्टम को, वो हीट एनर्जी कहीं पर खत्म नहीं होगी। या तो अगर तुमको सिर्फ वर्क डन देखने मिल रहा है बट आपका क्यू डब्ल्यू के वर्क डन के बराबर नहीं है, मतलब हो ना हो, जो चीज नहीं दिख रही है, जो एनर्जी नहीं दिख रही है, वो कहाँ जा चुकी है? वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा चुकी है। मतलब इवन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स एन एक्सटेंशन टू योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट व्हाटएवर एनर्जी यू गिव्स, अगर उसमें से कुछ ही अमाउंट वर्क डन में दिख रहा है तो हो ना हो बचा हुआ अमाउंट कहाँ पर यूज हो गया है? इंटरनल एनर्जी में यूज हो गया है। Okay, so this first law of thermodynamics explains you, or it extends your conservation of energy explanation as well. Are you clear with the concept? This is the system. Okay, let's say Q given is 200 joules. Okay, work done is 100 joules. And you need to calculate the change in internal energy, delta U. अब ये फॉर्मूला, ये इससे प्रूव होगा कि why your delta U is coming to negative, positive or zero. You know that whatever amount you give is used for two things, delta U plus W, change in internal energy plus W. Q कितना दिया है? 200 joules. Your Q is given is 200 joules. ठीक है? Now here delta U plus W, कितना वर्क डन हो रहा है? The work done by the system, let's take the work done by the system is 100. ठीक है? So here, yeah, so delta U you will get
समझा? नेक्स्ट, Q given is 200 joules, work done is minus 100 joules. Okay, let's go ahead. Your Q is equals to delta U plus W, and I'll repeat this sum tomorrow as well. तो कुछ मिस हुआ है तो रहने दो. So Q is 200, work done is minus 100. So delta U will be यहाँ पे minus 100 ले रहे हैं. एक मिनट, there is some issue here. There's some issue. I'll discuss this some tomorrow. I'll discuss this some tomorrow. ये सब मैं